The journey started sometime in August of 2020. Um, and the symptoms were very mild actually, in the sense I did not realize that this will ultimately result in something like this. लेकिन मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ माइल्ड फीवर जैसा था और या फिर फीवरिश फीलिंग होता था. उसके अलावा और कोई मेजर सिम्टम तो नहीं बोल सकता हूँ मैं. एंड apart from the mild fever which was like coming going, my family doctor was saying कि आप क्रोसिन खा लो या डोलो 650 खा लो, ठीक हो जाएगा, like that. But कुछ दिनों में I realized that it was not, the fever was not going, because there were no other symptoms like cold या cough या headache और ऐसा कुछ भी नहीं था. But I slowly started developing pain in the lower abdomen. Then I thought, okay, I will go to the hospital, do a checkup, and maybe they might take a sonography or something to know what the situation is. So initially, I went to a small hospital for checkup, thinking that सुबह जाके शाम को मैं चेकअप करके वापस घर पे आ सकता हूँ करके. पर उधर लोगों ने बोला कि ये कोविड के वजह से भी lot of cases were there in the hospital. So they said you get admitted and then we will conduct all the tests. So I said fine, I will get admitted. And it was a Thursday, if I remember, when I went for all the checkups and all. And then so since the swelling was there in the lower abdomen area, that was also coming down with some antibiotic injections that they gave. लेकिन उसके बाद डॉक्टर बोला कि it is something else. So they were suspecting 2-3 different issues. But then they said कि we will send your blood sample to an external path lab for analysis, क्योंकि मैं जो hospital में था वहाँ पे they could not detect it at that point. So when they sent it to an external lab, 2 दिन के बाद report आया. So the indicator was that the blood count was in terms of hemoglobin या white blood cells or red blood cells or platelets, वो सब काफी कम था. So the doctor was suspecting कि हाँ ये possible है करके, cancer could be possible करके. But then they could not confirm until the sample was sent to the external lab. और फिर उसके बाद the external lab after 2 days came back and confirmed saying that ये ऐसा है करके, and that we should immediately start the treatment, but not in that hospital, but you have to consult a external doctor in hospital from where they can give you the best possible treatment. So this was confirmed on 15th of August 2020. फिर उसके बाद मैं 2-3 हॉस्पिटल्स में मैंने चेक किया. मतलब basically I had to be very careful to identify the correct hematologist and hemato-oncologist who can give the exact type of treatment for this type of blood cancer. So which is the type of cancer is called as acute myeloblastic leukemia, which is AML. One type blood cancer में ही बहुत सारे types होते हैं, types and subtypes. So so they said that the only cure that is possible is by chemotherapy, और डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या क्या steps होगा, कैसे करना है, treatment protocol कैसा होगा, कितना दिन का होगा, what kind of arrangements have to be done in like blood donors, platelet donors, all that. So मेरा actually rare blood group निकला. Initially, in the sense कि इतने सालों से some of the earlier reports were showing that I am A positive blood group. लेकिन जब ये सब detect हुआ, फिर डॉक्टर ने बोला कि certain cancers are capable of altering the genetic
parameters in a system. So eventually the blood group showed as A negative. So uske hisab se then they had to take the correct type of treatment protocol, the correct type of the chemo drug that they had to prescribe was accordingly handled. फिर the actual intense treatment start hua middle of August में, which went on till March 2021. So almost 7.5 months of intense treatment happened. And then uske beech mein, matlab doctor said that we will have to do once in 2 months or once in 3 months bone marrow aspiration and bone marrow biopsy to determine कि bone marrow के अंदर अभी भी infected cells है नहीं है, am I getting cured with chemotherapy, am I entering into remission or not. So वो सब tests were being done, and since I'm from Mumbai, the doctor that I consulted, he suggested to get the treatment in Lilavati Hospital. So we approached Lilavati Hospital, and my consulting hematologist works there apart from a few other hospitals also, but this was accessible for me from my residence, and I had some of my relatives and friends also near to Lilavati. So I said, okay, agar kisi ko emergency rahega, so people can come to the hospital, take care, arrange for blood donors. क्योंकि वो कोविड का पीक के टाइम पे getting blood donors was quite difficult. Plus being rare blood group, the hospital said कि हम दूसरा blood group नहीं लेंगे, हमको यही A negative का group का ही donor चाहिए, जिनका extract करने के बाद they will process it, and then if it is good to be given, only then they will give. Because hospital के blood bank में ही इनके पास मेरा blood group का stock नहीं था. So that was how the situation is. So we had to contact a lot of people, office circle, friend circle, relatives का circle, कि कहाँ पे. So कई सारे WhatsApp group बने थे. So a lot of communication effort is involved. Lot of contacts are required, and you need to know people from where they can come. Some people came from Pune all the way to Mumbai to donate blood, and people from other parts also had come. Wherever they could come, they had visited. Hospital mein they had bifurcated. The hospital was split into two. One was a COVID zone and one was a non-COVID zone. So doctors भी COVID section पे जाएंगे तो non-COVID में नहीं आएंगे, ऐसा था. So the logistical arrangements for getting a donor, getting the treatment and getting the testing and everything done, that took a lot of time. Which is probably the reason my intense treatment went for 7-8 months. Otherwise, I would have hoped कि 5-6 months में खत्म हो सकता था. So that was the initial background and development. And the other part is, matlab, this type of treatment along with several antibiotics that are given to neutralize any of the side effects of chemo. वो भी था. So different types of antibiotics had to be given. Everything was intravenous. So I spent a lot of days in being admitted in Lilavati Hospital and getting the treatment also done. So treatment used to happen in parallel. Blood donation used to happen. Platelets were also being donated by people. So I had a IV line. It is called as a PICC line. Some of your patients might be aware of what is a PICC line. It's like a catheter that they insert in the hand, and through that there were some 3 wires going inside from my hand up to the heart, which was inserted in the beginning through a small surgical procedure in the hospital. And since that had provision for multiple infusion or transfusion, so through that they used to give chemo, they used to give antibiotics, they used to give blood, they used to give saline. All used to run in parallel at that point of time. And
I think most important is, you need to have faith with the doctors. You need to have a lot of faith in the medical treatment protocol, how it is being done. Uh, the entire diet is prescribed only by the doctor and the hospital. Uh, so it's basically a neutropenic diet in the sense low salt, low spice, no sugar, no oil, nothing fried, nothing raw, uh, no processed food. Of any type of food with preservatives had to be stopped, including बेसिक टोमेटो केचप जो हम लोग दुकान से खरीदते हैं उसमें भी बहुत प्रिजर्वेटिव्स होता है. So any type of food that had preservatives were completely stopped, and only fresh, home cooked food, sattvic ahar, hygienic. Of course, I'm a vegetarian, but if the doctor also said ki if in case you are having non-veg, then you should stop that, and you should have only vegetarian food for the entire duration of the treatment. So that is how the whole process went for a considerable period of time. And then the second, third bone marrow test that they did, it started showing as negative, which means that through the bone marrow test, they were not able to identify any, cancer cells basically. So then the doctor said that you are entering into remission, and you need to still continue with your treatment because it's a protocol. And then you need to also proceed further with preventive treatment in case future में ये relapse होता है तो वो relapse को prevent करने के लिए एक preventive chemotherapy was also prescribed. So that was a longer duration that went for 1.5 years after my main treatment was done. And then post that only they will declare whether I am fully free or not. So I have my last chemotherapy preventive treatment scheduled in this month in October. And then after that, there will be one final bone marrow test in which the doctor will say, okay, the treatment is done. Yeah. What is the nature of diagnosis at that point of time? By end of October or early November, I will get to know. So that is where it stands. I mean, even though I am in remission, I can say that medically I am cancer free, but I'm still a patient when it comes to further treatment is concerned. So total 15 cycles of chemotherapy treatment I have had, each cycle lasting for 1 week, minimum 1 week to 10 days. So that is where the situation stands. So it's also important that your body is able to accept the chemo, how we are able to deal with it at home, how family is supporting us, how your friends, relatives, how they are able to help and support in this entire journey of more than 2 years now. So that is how it is. Any questions? I'm happy to Right, hear sir. and share more of my experiences and feedback for the benefit of everybody on this call. डेफिनेटली सर, मेरी हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे. सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको लाइक पहले से भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ कोई फैमिली हिस्ट्री थी कैंसर में? नहीं, नो फैमिली हिस्ट्री. हेल्थ प्रॉब्लम बोलने के लिए, आई मीन there were very minor, matlab, at the most it will be like cold cough and all that because it's a very humid weather in Mumbai. But then COVID ke time pe I was only at home starting from March 2020 until my diagnosis in August. I was only at home and I was not going out anywhere. So और वो टाइम पे बाहर जाएगा तो भी nothing was, most of the shops were all closed at that point of time. So I would have had minor health issues, but that did not really trouble me much throughout. So but having said that, हाँ, in the sense during my childhood I had my, like जैसे काफी बच्चों को tonsils का operation करते हैं. So I went through that. Then I went through my appendicitis
surgery also. All that in my school and college days. But once I started working, then I did not have any health issue as such. And nobody in the family also had any other type of cancer, not only blood, but और कोई भी type नहीं था family में. So it was a little, मतलब very unexpected कि ये कैसे हुआ. We did some genetic tests also to identify कि is there any paternal linkage or anything of that sort. But genetic test also came negative. So then we thought, okay, I mean, test करके अगर कुछ पता चलेगा तो भी कुछ कर तो नहीं सकते थे. That information will only help us to know कि हाँ, maybe any of my grandparents or great grandparent या किसी को भी था. क्योंकि but in all these years the treatments have also improved so much for cancer, and all the different type of cancers the treatment has improved a lot. The availability of medicines, the availability of chemo drugs has also gone up quite substantially. But one thing was that nowadays there are so many pharma companies who are selling anti-cancer drugs. Indian pharma companies as well as MNC pharma companies are selling the same medicines in India. Either they have a factory in India where they manufacture and sell, or an Indian pharma company also selling that. So the kind of analysis or research इसमें है is कि between one pharma company to another pharma company same दवाई अगर वो लोग देते हैं भी, what is it that the doctor is comfortable? Because the doctor knows ये pharma company का दवाई लेने से उसका quality एक certain standard quality रहेगा, where there will not be any compromise in the manufacturing process or in the packing process, जो भी है, the entire supply chain that is involved. So my doctor used to insist कि ये दवाई ये फार्मा कंपनी का लेना है, दूसरा दवाई दूसरा फार्मा कंपनी का लेना है. तो ऐसा करके उन लोगों ने स्पेसिफिकेशन पहले ही बता दिया. And if you go to and the doctor was also quite helpful in the sense, उन्होंने बता दिया ये wholesale distributors कौन है ये दवाई के लिए, so that I can talk to them directly, negotiate and get a better price or a discounted price for the medicines. Like that, because otherwise it was very expensive. Hospital was very, very costly. So unless you have contacts to know कि हाँ ये wholesaler है या ये distributor है वो दवाई का, then you can talk to them, negotiate, और वो लोग घर पे ही आके deliver करते थे. And some of them used to have a tie-up with the doctor also. So डॉक्टर ने जो recommend करते हैं वो basis पे वो pharma company से मैं दवाई लेता था. I mean, not only the chemotherapy drug, but even some of the antibiotic medicines that I was taking, or there are injections which have to be refrigerated and taken for boosting the WBC or for boosting the platelets. So there are certain imported drugs that come. So quality wise, there are Indian pharma companies also who are of almost same quality or comparable quality with the MNC pharma company. So doctor said, this is my prescribed list or the preferred list for medicines, and only that you should take, is what the doctor said. So accordingly, I had to make arrangements with the dealer or the wholesale distributor to provide it at a more economical price. But even after that, it is in the sense that treatment is not cheap. Treatment is quite expensive. But I realize कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा negotiate नहीं कर पाऊंगा, या मतलब इस कम प्राइस में तो ला नहीं सकता. तो वो लेवल तक में जितना लेके आना है कर दिया. And if you have medical insurance, okay, the insurance will compensate for it. अगर insurance नहीं है, so then all this negotiation for medicines are become very important at that stage. Right. So, sir, like तब आपको कैंसर डायग्नोज हुआ तो आपका और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? For me,
जैसा मैंने बोला था, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया। फैमिली को तो काफ़ी शॉक लगा, बिकॉज कोविड का शॉक ऑलरेडी काफ़ी लोगों को था, मेरा बिल्डिंग में, मेरा सोसाइटी में, मेरा पूरे कॉम्प्लेक्स में। तभी बाहर जाना तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। सो ये कोविड के बीच में ये कैसे आया, दैट nobody could tell. Yes, for a few weeks it was tough within my house, um, and my relatives and colleagues and friends and all. But then people said कि ठीक है, you are in Bombay, you have access to good treatment, अच्छे doctors हैं यहाँ पे, अच्छे दवाई यहाँ पे मिलते हैं, right? So you forget everything else, you forget about your job, your, you know, or anything else. Just focus only on your health, your recovery, your treatment, so that you get fully healed and fully cured at the end of the entire treatment. So that is how it was. ओके, राइट सर, ऐसा थोड़ा एकदम से लगता ही है शॉक, स्पेशली कोविड के टाइम पे तो काफी डिस्टर्बिंग होगा, बट राइट, या सो सर लाइक जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे तो आपने कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी ट्राई किया? There were a few options that were suggested to us, but challenge उसमें क्या है कि it was not allopathic, it was obviously Ayurveda. I mean, I do believe in Ayurveda because my native is actually Kerala. So Kerala में anyway, that state in the whole country is anyway popular for manufacturing, distribution and sales of lot of Ayurvedic medicines. और वहीं पे locally बनाते हैं, केरला में बनाते हैं. But the only challenge was that Ayurveda doctor will not recognize the allopathic treatment, and the allopathic doctor will not recognize the Ayurveda treatment because the type of treatment is quite different. So what a lot of people had suggested was कि future में आपको preventive treatment लेना हो, so that no other type of cancer comes to you in the near future. And because this is blood related, it is not one part of the body or one organ which is affected, right? So it is from head to foot, right? And it's the same blood that goes to every organ. So it requires very deeper level of treatment. So I might consider Ayurveda later on, because Ayurveda में it is not like allopathy कि दिया तो immediately effect हो जाएगा. Ayurveda takes few months for the effect to slowly become visible. And Ayurveda contains a lot of heavy metals also. In the manufacturing process, there are a lot of heavy metals involved. So I explored at least only Ayurveda as an alternate treatment, but I thought कि एक बार मेरा ये preventive chemotherapy खत्म होने दो, उसके बाद further preventive treatment I can explore in Ayurveda. So that is where it stands right now. Maybe that journey is something I have to cover in the in the next few months. राइट सर, सर लाइक मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे, जब कैंसर ट्रीटमेंट होता है तो इमोशनली और मेंटली भी काफी ड्रेन्ड हो जाते हैं, काफी ज्यादा प्रेशर होता है और टेंशन होती है, तो लाइक तब आपको ऐसा हुआ तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? See, first of all, I spent many weeks in hospital. So जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर बोला कि आप ऐसा घर से हॉस्पिटल से घर आप नहीं कर पाओगे, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, एंड जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता रहेगा, वो सब टाइम पे आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा. So I was mentally prepared to accept that. The second thing was, because I was in the hospital, I don't get to see कि घर में क्या हो रहा है. सर आई वुड जस्ट इंटरप्ट फॉर 1 सेकेंड. सर क्या हम लोग थोड़ा लाइक दोनों लैंग्वेजेस में बात कर सकते, लाइक थोड़ा हिंदी में भी कर सकते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लोगों को थोड़ा ज्यादा सही से अच्छे से समझ आएगा. ओके हाँ, या कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो इमोशनल मतलब हाँ था थोड़ा. मेरे को तो कैसे बताऊं,
ऑफिस का काम जो है वो अटक रहा था। ऑफिस वालों को पता था कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ करके, तो तभी मैंने फैसला किया कि मतलब टीवी देखो या न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें सब पूरा कोविड का ही न्यूज़ आ रहा था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सो टीवी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, या न्यूज़पेपर में भी वो टाइम पे पढ़ो 2 साल पहले तो सब अ, यहाँ ये कंट्री में इतना हुआ या इंडिया में ये स्टेट में इतना हुआ, और महाराष्ट्र वैसे भी नंबर्स में तो सबसे आगे था, नंबर 1 स्टेट इन इन एंटायर इंडिया फॉर मैक्सिमम कोविड काउंट। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं ऑफिस का लैपटॉप हॉस्पिटल लेके आऊंगा और हॉस्पिटल में बैठ के मैं काम करूं। क्योंकि वन आई वाज मतलब ऑफिस काम से मैं काफी अटैच्ड था, बिकॉज आई लाइक द ऑफिस वर्क। और दूसरा ये था कि दैट वाज लाइक अ डिस्ट्रैक्शन, मतलब ऑफिस के काम पे ध्यान देने से एक तरफ पैरेलल ट्रीटमेंट चल रहा था, और ऑफिस का काम में ध्यान देने से अ, वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन बन गया था मेरे लिए कि मैं उसमें कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मैं उसमें जितना भी हो सके मैं काम कर सकता हूँ। और मेरे कंपनी में जब मैं काम कर रहा था तो वो लोग ने बोला ठीक है, आप जब तक आप ऑनलाइन हो ठीक है, हमको परवाह नहीं है आप घर से कनेक्टेड हो या मतलब वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल हो या किधर भी अ, चलेगा, जब तक काम होता है काम होता है। ऑफिस वालों के लिए वही मतलब है ना। तो थोड़ा बहुत मतलब 50% मैं कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल में से काफी काम हुआ मेरा, ऑफिस का काम। लेकिन एक ही है कि मतलब कीमो लेने से जो टायर्डनेस आता है वो बहुत टायर्ड फील हो जाता है। सो लैपटॉप वाज ऑलवेज ऑन माय बेड, एंड जब भी हो सके तो थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता था ऑफिस का ईमेल्स वगैरह पढ़ने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। आई माय वाइफ वाज आल्सो विद मी इन द हॉस्पिटल थ्रू आउट, तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया। एंड उसके बाद कुछ ईमेल्स भी वाइफ बैठ के ड्राफ्ट करते थे मेरे लिए, मैं उनको डिक्टेट करता था, वो ईमेल लिखते थे और ऑफिस में भेजते थे। सो वो अरेंजमेंट थोड़ा वर्क हुआ। मैं भी ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि काफ़ी सारा ऑफिस का मीटिंग्स ऐसा वीडियो कॉल होता था या ऑडियो कॉल होता था, तो जहाँ पे पॉसिबल हो, जब तक एनर्जी था मेरे पास, मैं ऑफिस का मीटिंग्स भी अटेंड किया। सो वो धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि वो हॉस्पिटल में बैठ के जो ऑफिस का काम करता हूँ मैं, वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन बन गया मेरे लिए। क्योंकि टीवी में या न्यूज़पेपर में तो बहुत सारा नेगेटिविटी ही चल रहा था। सो ऑफिस का जो अटेंशन था, इट इट हेल्प मी टू स्टे फोकस्ड। नहीं तो क्या होता है, आई मीन आईटी इंडस्ट्री में भी द इंडस्ट्री काफ़ी चेंज होता रहता है, सो वी हैव टू कीप पेस। डेवलपमेंट्स क्या क्या होता है वो सब रेगुलरली अपडेट करके रखना पड़ता है, अदरवाइज आई विल फील कि आई हैव लॉस्ट समथिंग। सो इट इज अ फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट, तो सो दैट वाज माय डिसीजन एट दैट टाइम कि हाँ, मैं जो भी हो, जितना भी एनर्जी हो, मैं ऑफिस का काम करूंगा, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कंपनी में बता दूंगा कि हाँ आज नहीं कर रहा हूँ या कल नहीं कर रहा हूँ, ऑल दैट। सो ऑफिस वाले भी थोड़ा कोऑपरेट करते थे, थोड़ा फ्लेक्सिबल थे। ऑफिस के थ्रू सम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस वाज आल्सो हैंडल, बट इंश्योरेंस का लिमिट तो बहुत कम रहता है, तो इंश्योरेंस का जैसे ही खत्म हो गया था तो उसके बाद जो भी उसके ऊपर जो भी खर्चा था वो सब मैं अपने जेब से ही डालना पड़ा। सो सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो मैं हॉस्पिटल में बैठ के काफ़ी सारा डिस्कशंस होता था वाइफ के साथ कि हाँ यहाँ से कितना विड्रॉ करना है या किसको कितना पेमेंट करना है, ऑल दैट। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भी बताया कि हॉस्पिटल से डायरेक्टली, अगर हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होता है वहाँ पे दवाई काफ़ी महंगा होता है, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि क्या मैं बाहर से दवाई लेके आ सकता हूँ, एंड कैन आई स्टॉक इट इन द हॉस्पिटल इन माय रूम सो दैट दैट विल बिकम मोर अफोर्डेबल, मोर चीपर। क्योंकि हॉस्पिटल में सब एमआरपी में बेचते हैं, वो लोग किधर भी डिस्काउंट नहीं देते हैं। सो तो वो अरेंजमेंट वर्कड फॉर सम मेडिसिन, नॉट ऑल।
For some tablets at least it helped. Imported medicines में भी थोड़ा help हुआ, क्योंकि imported medicines में bill नहीं मिलता है, तो और हॉस्पिटल वाले तो फुल चार्ज करते हैं, तो मैं बाहर से लेके आता था एंड पीपल यूज्ड टू कम एंड वहाँ पे डिलीवर करते थे. माय वाइफ यूज्ड टू गो कलेक्ट एंड देन आई यूज्ड टू टेक, एंड द स्टाफ, हॉस्पिटल के स्टाफ भी काफी कोऑपरेट करते थे. एंड बिकॉज आई एम अ साउथ इंडियन, हॉस्पिटल के काफी सारे स्टाफ स्पेशली नर्स या सीनियर नर्स वगैरह वो सब साउथ के ही हैं, तो that also helped to some extent manage the situation. राइट सर. तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको लाइक ट्रीटमेंट के वक्त आपको थोड़ी वीकनेस, मतलब वीकनेस होती है तो वो आपको फील होता था. तो उसके अलावा कोई और ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स थे जो आपको हुए थे ट्रीटमेंट के वक्त? See, side effects were many. So side effects were like, matlab, there were some serious side effects also. In the initial treatment के starting पे थोड़े serious side effects थे, जैसे कुछ दवाई लेने से जो sweat आता है, the sweat used to be orange yellow color. नॉर्मली हमारा पसीना जो है वो पानी का कलर में रहता है ना, तो जो स्वेट आता था मतलब फुल बॉडी, सो इट यूज्ड टू कम लाइक वेरी येलोइश ऑरेंज कलर. सो दैट वाज अ लिटिल स्कैरी. पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स दिया था. फिर पता चला कि वो एंटीबायोटिक्स लेने से भी साइड इफेक्ट्स आता था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा दवाई दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा. मतलब अगेन डॉक्टर्स ऑल्सो थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं एट टाइम्स टू सी विच मेडिसिन विल वर्क, विच विल नॉट वर्क, और कौन से दवाई में मैक्सिमम क्योर मिलता है. सो देयर वर, मतलब ऐसा सिचुएशन भी था कि 2-3 दवाई इनको बदलना पड़ा, और फिर अल्टीमेटली फाइनली जो दवाई पे सेटल हुआ उसमें साइड इफेक्ट एकदम कम था, एकदम मिनिमम साइड इफेक्ट पे लेके आया. बट है साइड इफेक्ट बोलने के लिए, जैसे वन इज फैटीग, ठीक, सडन मैं काम करूंगा, आई विल कि मैं बहुत थक गया, देन आई विल टेक रेस्ट, वैसा एक था. और दूसरा ये था कि देयर वर लॉट ऑफ ब्लिस्टर्स इन द स्किन, छोटे छोटे बॉयल जैसे स्किन में आते थे. और थर्ड वाज बैक पेन, स्पेशली लोअर बैक पेन, वो बहुत होता था. Hair loss used to happen, but then gradually I was able to regrow hair also. And sometimes I used to go मतलब blank, कि कभी मैं सोचता हूँ तो कुछ आइडियाज नहीं आते थे. So he said it could be a part neurological issue या फिर slightly memory issue because of the strong dose that they were giving. तो ऐसा मतलब छोटा साइड इफेक्ट, बड़ा साइड इफेक्ट, मेन वर कीमो लेने से, मतलब मिनिमम साइड इफेक्ट बोलने के लिए तो नॉसिया, वॉमिटिंग सब होता था. कॉन्स्टिपेशन यूज्ड टू हैपन बिकॉज ऑफ केमोथेरेपी. तो ये सब धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर पे टेस्ट करके, चेक करके क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, फिर उसके हिसाब से डॉक्टर ने फ्रीक्वेंटली मेडिसिन चेंज करवाया. देन अल्टीमेटली एक लेवल पे सेट हो रहा था व्हेन डॉक्टर रियलाइज की ये कॉम्बिनेशन ऑफ दवाई इज गिविंग मैक्सिमम बेनिफिट. तो वो अचीव करने के लिए 6 महीना लग गया. राइट, बिल्कुल सर. तो सर आपने अपने ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद में कोई मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए? लाइफस्टाइल चेंज बोलने के लिए मतलब मेरा कोई बैड हैबिट्स नहीं है. सो एनीवे आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक. तो लाइफस्टाइल चेंज बोलेगा तो वन थिंग वाज फूड, डाइट. जो जिस तरह का डाइट मेरे को प्रिस्क्राइब किया था ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग पे, वो डाइट में अभी भी ले रहा. मतलब लो सॉल्ट,
low sugar. So I replaced sugar with that jaggery powder because the common thing that doctors कहते हैं कि अगर कैंसर है तो आप शुगर बंद कर दीजिए, क्योंकि शुगर कंजम्पशन करने से it can aggravate the cancer in the system. So I am not diabetic. I don't take any insulin or anything. But फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आप मतलब बाहर का कोई भी स्वीट्स वगैरह, बाहर से कुछ भी खरीदो मत खाने के लिए, कुछ भी रॉ मत खाओ. So no raw fruits, no raw vegetables. अगर fruits ले रहे हैं तो भी remove the skin and have. Like for example, even for apples also, we used to remove the skin and have. So, and the second point that the doctor said is take only those type of fruits which are having a thick skin, so that जो भी ये pesticide वगैरह जो भी spray करते हैं ना, it does not affect the fruit inside. So the skin should be a very thick skin, like banana skin, yeah, pomegranate ka skin. So that does not allow any of the pesticides to go inside the food. So only those type of fruits and vegetables I was taking. So lifestyle बोलने के लिए mainly diet, and second मतलब the dietary change, even today I follow that strict diet, and I don't eat out. बाहर से मतलब ये Zomato, Swiggy से कुछ भी खाना खरीदता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. No pizza, no burger, no your 7-Up, Pepsi, Coke, कुछ भी नहीं, सब बंद. पहले भी नहीं करता था, बट डॉक्टर का कहने के हिसाब से उन्होंने कहा कि वो सब तो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स है, तो वो सब आप मत लो, बिकॉज दे आर नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ करके. So that is the thing. And I think one more lifestyle change I did is I started doing lot of works, lot of exercises just to keep myself fit. और उसके बाद avoid any type of stress या hypertension से दूर रहो. तो एक टाइम ऐसा हुआ था, मतलब in February, March this year, my blood pressure had suddenly shot up. 165 by 115 था. तो डॉक्टर ने मेरे को वार्निंग कर दिया कि बीपी अगर इतना हाई है तो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं. आई हैव टू गो टू ओनली अ कार्डियोलॉजिस्ट हु कैन हेल्प रिड्यूस माय ब्लड प्रेशर. सो फिर मैं बीपी का दवाई लेना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट 2-3 महीना लगता है उसका इफेक्ट दिखने के लिए. तो उसके बाद बीपी अभी नॉर्मल हो गया. बट डॉक्टर बोला कि बीपी अगर नॉर्मल है तो भी आप बीपी का दवाई स्टॉप नहीं करना है, यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट एंड टेक सम मल्टीविटामिन tablets also. So I am taking that as well. So all energy foods like for example badam, yeah, bananas or dates, they which help to boost the hemoglobin count and the red blood cell count, वो सब खाओ. Platelets के लिए particularly he said have lot of protein. So most of the different types of dal, मतलब उड़द दाल, तुअर दाल, मूंग दाल वगैरह, या ये सब स्प्राउट करो घर पे ही. स्प्राउट होने के बाद जब पूरा स्प्राउट होगा उसके बाद आप उसको कुकिंग में इस्तेमाल करके रोटी के साथ आप खा सकते हैं या राइस के साथ खा सकते हैं. तो उसके वजह से आपका प्लेटलेट का काउंट काफ़ी इम्प्रूव होता है. और सो टेक लॉट ऑफ ऑरेंजेस एंड लेमन फॉर विटामिन सी, बिकॉज वो WBC को बूस्ट करता है. सो दैट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल जो 2 साल से सेट हुआ वो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड आई विल नॉट स्टॉप इट. वो चलता रहेगा. बिल्कुल सर, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी सबको बताई, दैट आप जो डाइट उस वक्त ले रहे थे वो आप अभी भी ले रहे हो. तो वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कैंसर में ये चीज बहुत जरूरी होती है. कैंसर ट्रीटमेंट में है कि आप क्या खा रहे हो, क्या चीजें आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, या क्या ये हमारे कैंसर को और बढ़ावा दे रहा है. एंड जैसे काफी लोग बोलते हैं ना कि सब बंद कर दो एंड ये नहीं खाना, मतलब ऐसा भी
भी नहीं है, बट ये होता है कि हाँ हमें नॉलेज होनी चाहिए एंड कितना खाना है, क्या टाइम पे क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं भी जैसे कैंसर के बारे में सीख रही हूँ, तो मैंने देखा है कि कैंसर पेशेंट्स को इतने डाउट्स होते हैं डाइट को रिगार्डिंग कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बिकॉज जितना अच्छा हम खाना लेंगे उतना अच्छा हमारा ट्रीटमेंट रहेगा, उतने अच्छे से हम लोग हमारे साइड इफेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, तो ये तो प्रूवन होता है। तो हमने देखा है कि इतने लोगों को इतने डाउट्स होते हैं, तो लाइक मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इतने लोगों को जितने भी डाउट्स हैं, वी हैव ओंको न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट जो स्पेसिफिकली कैंसर में एक्सपर्टाइज रखते हैं, तो उन्हें हर कैंसर की नॉलेज है कि किस कैंसर में क्या चीज कितनी खानी चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। एंड जैसे आपने बताया कि आप मल्टीविटामिन्स लेते थे, तो उन्हें इस चीज की भी नॉलेज रहती है कि कितने कौन कौन से सप्लीमेंट खाने चाहिए या किसी का कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है। तो अगर किसी को भी कोई भी न्यूट्रिशन रिलेटेड डाउट है, तो वो मैंने हमारा नंबर यहाँ पे शेयर किया है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम उनके न्यूट्रिशन रिलेटेड डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। मैंने ओके। हमारा कांटेक्ट नंबर चैट पे डाला है, बिकॉज एवरीवन नोज कि जो हम खाते हैं, वी आर व्हाट वी ईट एंड लेट फूड बी द आवर मेडिसिन, मतलब जो खाएंगे उसी इतना इतना ही अच्छा रहेगा हमारे ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है सर। एंड सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था कि लाइक फिर आपकी मतलब पूरी इंटायर जर्नी में ऐसी क्या चीजें थी जो सबसे अच्छी रही, जिनसे आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहा? Can you please repeat that question? I'll try to answer as much as possible. Can you please repeat that question? एक्चुअली आई आस्क दैट ऐसी क्या चीजें रही जिनसे आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिली आपके पूरे कैंसर जर्नी में, किन चीजों से आपको मोटिवेशन मिलता रहा? Hmm, I did not leave my routine because with the treatment जैसे ही पैरेलली चल रहा था, मेरा जो स्टैंडर्ड रूटीन है, सुबह उठो, नाश्ता वगैरह कर लो, फिर पूरा वार्म अप एक्सरसाइज सब करो, फिर न्यूज़पेपर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो सब बैठ के पढ़ो, फिर ऑफिस का क्या क्या काम चल रहा है वो सब करो, घर के लिए कुछ काम करना है वो करो, बाहर जाके शॉपिंग करना है या मार्केट जाना है सब्जी वगैरह लाने के लिए वो सब करो। तो आई फेल्ट दैट आई एम नॉर्मल। आई डिड नॉट फील कि मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो मैंने दिमाग से निकाल दिया। तो आई यूज्ड टू टेल माय वाइफ कि नहीं, इंस्टेड ऑफ यू गोइंग आउट टू शॉपिंग आई विल गो बाय एंड कम। सो दैट ऑल्सो गेव मी अ चांस बाहर जाके शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ऑफ कोर्स मेरा डॉक्टर तो क्लियरली बोल दिया कि आप कहीं पे भी बाहर जाओ, बिकॉज यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, make sure you are wearing a mask, not only for COVID protocol perspective, but for anything else also, because ये standard flu जैसे seasonal flu बोलते हैं ना, cold cough वगैरह, that can also spread, right? तो जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं उनको रिकवरी उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको किसी ने कुछ दवाई प्रिस्क्राइब किया, मतलब कोई बाहर का डॉक्टर ने कुछ दवाई प्रिस्क्राइब किया, फिर आपको पता होना चाहिए अगर उसमें कुछ एंटीबायोटिक है या नहीं है। अगर एंटीबायोटिक है तो उसका और कीमोथेरेपी के जो मेडिसिन है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्या ये नहीं। सो ये सब क्रॉस चेक करके ही फिर वो कंफर्ट लेवल आने के बाद ही मैं वो दवाई लेता था। सो मतलब दैट इज हाउ आई वाज मेंटेनिंग माय रूटीन। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, शाम को मैं जाके बैडमिंटन खेलता था। बैडमिंटन कोर्ट है घर के बाजू में, सो आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन विथ माय सन। उसको भी अच्छा लगता था खेलने के लिए, मेरे को भी अपॉर्चुनिटी टू बर्न आउट सम एनर्जी, सो दैट आई आल्सो फील क्वाइट फिट एंड एक्टिव। तो वो सब मैनेज करता था, बट हाँ वो बीच बीच में फटीग होता था, आई यूज्ड टू फील वेरी टायर्ड थोड़ा खेलने के बाद भी, बट दैट वाज लाइक मतलब कोई चॉइस नहीं था। तो डॉक्टर बोला इवन पीने का पानी भी जो है ना वो आप डेली बॉईल करके ही पियो। आपके पास कोई भी तरह का वाटर प्यूरिफायर घर में हो सकता है, मतलब इवन द बेसिक ऑफ वाटर प्यूरिफायर और अ वेरी बिग इक्विपमेंट फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, आप उसमें से वाटर प्यूरिफाई कर लो, उसके बाद वो पानी को आप बॉईल करो,
फिर पियो. So no tap water and no mineral water from shop, मतलब Bisleri or Aquafina, nothing of that sort. Have only boiled water at home. So वैसा मैंने करने को स्टार्ट किया और कंटिन्यू किया मैंने पूरा 2 साल. So all these things, routine, talking to people, talking on, मतलब chatting with people in WhatsApp, it gave me that diversion. It made me feel more relaxed, eliminated the stress completely. है फिर भी स्ट्रेस होता है, छोटे छोटे चीज़ों पे भी स्ट्रेस कभी कभी हो जाता है. सो कभी कभी डॉक्टर को ही बताना पड़ता है, सर आपने ये मिस किया या जो भी है. सो डॉक्टर जितना भी मेरे को बोलता था वो सब मैं जाके गूगल में सर्च करके different cancer websites से I used to get the information, and because I'm in the IT field, access to information is possible. So ये सब मैं करता था. राइट सर. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे सब कैंसर पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को? Oh, that's a very good question. I think one is stay confident, stay extremely positive. Third is your own endurance level. How much can you endure? वो हर एक इंडिविजुअल के हाथ में है. Trust the system, trust the doctors, and make sure you have all information related to your treatment available so that I also parallelly know कि मेरे जैसा कंडीशन के लिए कैसा ट्रीटमेंट वर्क करता है, तो उसके बारे में पूरा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है. And that is my advice to all the participants on the call also. मतलब don't feel emotionally hurt or don't feel emotionally disheartened कि मुझे ऐसा हो गया, all of that stuff. मैं जितने भी वेबसाइट्स में मैंने पढ़ा उसमें मेरा टाइप ऑफ कैंसर के लिए तो काफ़ी डेंजरस लिखा था फॉर AML. दैट इज व्हाट इट इज. मतलब ये काफ़ी कंट्रीज में कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ओनली इन इंडिया. In other countries also it is there, but India it is very high. And if we look at, for example, Tata Hospital, Bombay में, जहाँ पे 300 डिफरेंट टाइप का कैंसर ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे लाखों लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. मतलब छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन्स तक लोग वहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. So this is not a small problem. This is a very large sized situation, and people should have the mental capability, the physical strength to fight it. You can't fight alone. You have to fight it with your family, with your relatives, with your friends, whoever is ready to support you. You have to take them in your journey. That is very important, including this forum, because I'm able to share all my feedback with all of you. I sincerely hope it is benefiting everybody in their journey. सबका किस किस का क्या जर्नी है, कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, पर काफ़ी लोगों को मालूम रहेगा, केयर गिवर्स हो या पेशेंट्स हो. Don't give up hope. You have to fight it. Even worst case scenario, मेरा डॉक्टर ने भी मेरे को बताया था कि अगर कीमोथेरेपी काम नहीं करता है तो फिर लास्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल इज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. एंड दैट इज अ रिस्की प्रोसेस, बिकॉज अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है गुड, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो. बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए यू गेट द करेक्ट डोनर. वो डोनर के पीछे देयर इज अ डोनर रजिस्ट्री अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो, वेयर ट्रांसप्लांट दैट इज स्टेम सेल्स जो लोग डोनेट करते हैं. बट दैट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, complicated procedure, involves at least 2-3 months of treatment for the transplant preparation, doing the actual transplant, and then post transplant recovery. वो सब बहुत important है. वो चीज़ के बारे में भी, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो
नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसा इंडिकेशन होता है तो you have to be mentally prepared for all of that. Then you will realize how much you have covered the journey, how much you have been able to fight it, all that. Because some of the doctors that I had met had even advised saying कि आप organic vegetables खरीदते हो क्या? मैंने कहा कि बाजार में कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, और कैसे पता चलेगा कि ये वेजिटेबल के ऊपर कौन सा पेस्टिसाइड का स्प्रे किया हुआ? बिकॉज इंडिया में कई तरह के पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू है या नहीं है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर कॉजिंग कैंसर. द पेस्टिसाइड्स, इफ दे आर हेवीली यूज्ड, कैन पॉसिबली कॉज कैंसर. बट जब हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, अच्छे से बॉईल करते हैं या फुल्ली कुक करते हैं, उसके बाद ही यूज करते हैं, राइट? उसके बावजूद भी रेसिड्यूज कैन स्टे बैक, विच इज व्हाई डॉक्टर्स यूज्ड टू से कि आप कुछ भी रॉ फ्रूट या वेजिटेबल मत खाओ. इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन रिलेटेड टू पेस्टिसाइड. बट सम डॉक्टर्स सेड अगर आप हो सकते तो आप ऑर्गेनिक खरीद लो करके, पर मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा ओरिजिनल ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक नहीं है, वो मालूम नहीं पड़ेगा. सो दैट इज हाउ इट इज. राइट सर, बिल्कुल. इनफैक्ट आपने जो अभी पहले होप एंड पॉजिटिविटी की बात करी, वो भी बहुत लाइक उससे भी काफी लोगों को इतनी पॉजिटिविटी मिली होगी, बिकॉज पॉजिटिविटी इज द की, है ना. अब अगर हो गया है तो उसमें अब कुछ नहीं कर सकते अगर आप उसी के बारे में सोचते रह जाओगे. उससे अच्छा है कि आप आगे की रिसर्च करो, इतनी टेंशन मत लो, एंड होप रखनी चाहिए दैट सब कुछ अच्छा होगा. राइट. Correct. सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है दैट अगर आप अपनी पूरी कैंसर जर्नी को एक सेंटेंस में बताना चाहोगे तो वो क्या होगा? एक सेंटेंस में वो तो मुश्किल है. थिंक I think one is believe in yourself, hope for the best, and pray for the best. Keep that hope that this world, it's there are a lot of blessed human beings who are on this earth, and there are people who are as good as what Shanti you will get by praying to God. So ऐसे बहुत सारे doctors भी हैं who save lives. So have faith and believe in all of that, and keep that confidence that you can achieve it. You can do it. राइट सर. सो आपका पूरा कैंसर जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि इससे काफी कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स की हेल्प हुई होगी. एंड जो मेरे क्वेश्चंस थे वो तो अभी पूरे आपने अच्छे से बताए हैं, बट हमारे पास कुछ कुछ लोग हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं. सो हम उनसे भी एक बार क्विकली पूछ लेते हैं. तो जॉर्ज काफी देर से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं. जॉर्ज, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. वेंकट जी, नमस्ते. आपकी बातें मैंने सुनी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके चेहरे से झलक रहा है. जैसा सिस्टर ने आपको बोला कि आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहते, तो मैं आपकी तरफ से एक मैसेज दे दूं. बोलिए. मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ. That's nice. और आपने जो बताया, एक्चुअली जो हम लोग सोचते हैं कि हमें कैंसर क्यों होता है, तो आपने जो बताया आजकल की जो खान पान की बातें हैं, जो मार्केट में सब्जियां आती है उसमें सब पेस्टिसाइड रहता है, केमिकल रहता है, इसके लिए हो सकता है. दूसरा बात है, कैंसर होने का मेन रीजन स्ट्रेस भी है, जहां तक मेरा ख्याल है. अभी मेरा जिस्ट है, एक्चुअली पेट का जो स्टमक कैंसर रहता है वो है, और मैं 13 साल से इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ. और आपने जो बताया कि शुगर सबसे बड़ा दुश्मन है कैंसर के लिए. Correct. कैंसर के लिए वो खाद है, यानी कैंसर के लिए शुगर मिलेगा तो कैंसर जिंदा रहेगा.
लेकिन अभी किसी ने भी कमेंट किया था कि डॉक्टर तो बताते नहीं कि शुगर बंद करो, क्योंकि हर एक डॉक्टर नहीं बताते, लेकिन आपका जो डाइटिशियन रहता है वो आपको बता देता है, लेकिन आपको वो डाइट को फॉलो करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी बात है, आपने बताया कि सिस्टर ने बताया कि आपके फैमिली हिस्ट्री कुछ है क्या, फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से अपना कोई लेना देना नहीं है। जब हम किसी भी धर्म को मानते हैं, या यानी आपका कोई गॉड है, आप विष्णु को मानते हैं या भगवान गीता को मानते हैं, किसको भी मानते हैं, तो उसके जरिए अपना एक बॉर्न अगेन रहता है, एक पुनर्जन्म होता है। तो अगर मेरे देवताओं को कोई कैंसर नहीं था, बीमारी नहीं, तो मेरे को क्यों हो सकती है? इस डॉक्टर का जो कहना है कि हेरिडिटी, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। एक जमाने में मेरा भी थिंकिंग ऐसा था, लेकिन एज पर आई एम अ कैथोलिक फेथ, मैं नहीं मानता हूँ कि ये हेरिडिटी है। और कभी कभी हम सोचते कि मेरे को क्यों कैंसर हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। हर एक आदमी को अलग अलग बीमारी रहती है। बीमारी खान पान से आती है, अपनी थिंकिंग से आती है, हम लोग का कुछ बैड बिहेवियर रहता है उसके वजह से भी आ सकती है। तो किसको दोष नहीं देना है, जो भी आया उसको लेना है, ऊपर वाले से प्रेयर करना है, डॉक्टर के डाइट को फॉलो करना है, जिंदगी जीना है। क्योंकि हमारे सोचने से कोई चीज बदलने वाली नहीं है, हमको बदलना है, हमारी थिंकिंग को बदलना है। जैसे हम लोग अपनी थिंकिंग को बदलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं, घर वालों को सपोर्ट मिलता है, तो हम इस जर्नी को बहुत सीधे तरीके से पास ओवर कर सकते हैं। और आपका जो आज का जो इंटरव्यू था बहुत हेल्पफुल था, बहुत लोगों को उसको जीने के लिए सहारा मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और दूसरी एक बात है, आपका जो कैंसर है, जिस्ट है या CML है क्या, AML है, क्या बताया आपने? तो मेरा, since it was blood cancer, the treatment was two stages. फर्स्ट स्टेज जो है वो 6 महीना लगा इंटेंस ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद रेमिशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि रेमिशन आने के बावजूद भी रिलैप्स होने का चांसेस है, मतलब ये कैंसर वापस आ सकता है, क्योंकि ये बोन मैरो के अंदर से ओरिजिनेट होता है। ओके। हाँ, तो सिंस दिस इज डीप इनसाइड द बोन मैरो, जहाँ से ये कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी, सो डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। तो पहले क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हुआ, इंटेंस ट्रीटमेंट था, रेमिशन में गया। उसके बाद प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वो एक 1.5 years गया। हाँ, तो उसका एक फाइनल ट्रीटमेंट साइकिल अभी पेंडिंग है, जो अक्टूबर में होगा, दिवाली के बाद मेरा फाइनल ट्रीटमेंट होगा। मतलब एक 10 दिन का ट्रीटमेंट रहेगा, विच इज ओके। हमारे ग्रुप है मैक्स फाउंडेशन करके, जो ट्रस्टी करके लोगों को फ्री मेडिकेशन देता है नॉर्थ ईस्ट के जरिए। और हमारे ग्रुप में कम से कम 15-17 साल से लोग हैं जो एक मैजिक बुलेट करके टैबलेट है, ग्लिवैक 400, जो स्विट्जरलैंड से आता था, लेकिन अभी इंडियन मार्केट भी बना रहे हैं उसको, इमैटिनिब। वो आपको ओरल केमो का काम कराता है। ओके। और उसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। और मेरे लिए भी वो टैबलेट एक टाइम था, जिसके लिए भी वो काम करता है, पेट के स्टमक के लिए। तो वो उसको एक मैजिक बुलेट के नाम से पहचाना जाता है, और बहुत बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट जो हमारे ग्रुप में है, जिसका CML है और जिस्ट है, वो लोग उस दवा को फॉलो करते हैं। और उसका साइड इफेक्ट भी है, लेकिन बहुत सारा नहीं है। और अभी इंडियन मार्केट में आने की वजह से वो टैबलेट बहुत अभी कम रेट में मिल रही है। एक जमाने में उसकी कीमत थी 30 टैबलेट की, मेरे ख्याल से 90 टैबलेट की कीमत थी लाखों में, 1,25,555 ऐसा कुछ था। लेकिन आज के मार्केट में 10-12 हजार में आपका 1 महीने का कोर्स उसमें मिलता है, और उसका बेनिफिट भी बहुत लोगों को हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट आप ये पॉइंट बताने से एक और पॉइंट याद आया, जो मेरे डॉक्टर ने मेरे को क्लियरली एडवाइस किया था, एंड जो मैं सजेस्ट करता हूँ सब लोग को ये ग्रुप में, कि इट इज इजी फॉर एवरीबडी टू फॉलो। एंड द पॉइंट इज, जब आप घर में खाना बनाते हैं, it should be the conventional traditional method of cooking,
वेरी ट्रू। हाँ, और माइक्रोवेव में कुछ भी खाना मत बना, दैट वाज वन। और सेकंड इज जितने भी ये माइक्रोवेव कंपैटिबल प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं ना मार्केट में, हाँ, जिसमें माइक्रोवेव प्लास्टिक बोलते हैं, उसमें लोगो रहेगा, सब लिखा रहेगा, वैसा वाला बर्तन आप यूज मत करो। वेरी ट्रू। कहते हैं कि वो माइक्रोवेव सेफ है, पर मेरे नहीं। कुछ फ्रेंड्स है यूएस में, उन लोगों ने बताया कि यूएस में अभी सब लोग माइक्रोवेव प्लास्टिक बंद कर रहे हैं, घर पे यूज नहीं कर रहे हैं, सब ट्रेडिशनल जो स्टील के यूटेंसिल्स हैं वही यूज करते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो खाना हम बनाते हैं वो फ्रेश बना के खाओ। ऐसा नहीं है कि खाना बन गया, फ्रिज में डाल दिया, कल निकाला या परसों निकाला, तो उसमें बैक्टीरिया बिल्ड होता है। वेरी ट्रू। हमारा बॉडी जो है, क्योंकि हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो बॉडी मे नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड प्रॉपरली, बिकॉज फ्रिज में रख के हम ठंडा करते हैं, वापस गर्म करते हैं, फिर वापस ठंडा करते हैं, फिर 1 दिन या 2 दिन बाद वापस निकाल के गर्म करते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब बैक्टीरिया उसमें फॉर्म होता है, इट इज नॉट सेफ टू कंज्यूम। तो अगर कुछ खाना बाकी रहेगा तो उसको आप फेंक दो, अगले दिन फ्रेश खाना बना के खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा डॉक्टर ने भी बताया था। और उसके बाद सारे जो भी माइक्रोवेव का प्लास्टिक यूटेंसिल्स था घर पे सब निकाल दिया मैंने। नॉन स्टिक बर्तन जो होता है ना, यस यस। कोटिंग, हाँ, इवन द नॉन स्टिक कोटिंग इज नॉट सेफ। तो जो भी बनाना है कढ़ाई में बनाओ, जिसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड कढ़ाई हो, बट नॉट इन एनी नॉन स्टिक कंटेनर। लोखंड का अच्छा है भाई, वैसे मेरे ख्याल से the traditional method of cooking. तो because I am South Indian, हमारे घर में हल्दी बहुत यूज होता है। यस। तो पहले हम लोग अच्छे ब्रांड के हल्दी पाउडर खरीदते थे, पर अभी हल्दी पाउडर खरीदना बंद कर दिया। हम लोग फ्रेश हल्दी खरीदते हैं, जो ताज़ा रहेगा उसको ग्रेट करते हैं और खाने में डायरेक्टली यूज करते हैं। उसका बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको। उसमें कुर्कुमिन भी रहेगा, जो आपको कैमोमिल डाला रहता है, कुर्कुमिन, फ्रेश कुर्कुमिन आपको मिलता है। हाँ, so like that try to मतलब anything which is processed, even the मसाला पाउडर या हल्दी पाउडर या जो भी पाउडर है, कैसे मशीन में प्रोसेस होता है या उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं क्या, सब पता नहीं। इवन सॉल्ट, मैंने सी सॉल्ट अभी बंद कर दिया। हम लोग रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो मिलता है ना, हाँ, पिंक सॉल्ट से और एक मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, जो स्टोन फॉर्म में रहता है, वो पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है अपने इंडिया के लिए। उसको आयुर्वेदिक में एक नाम है, कुछ नाम है, मलयालम में इंदुप। हाँ, उसमें मराठी में कुछ नाम है, हिंदी में एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो स्टोन फॉर्म में रहता है। उसको आके क्रश करने का और मिक्सर में ग्राइंड करके रखने का, तो वो अच्छा है, क्योंकि सी सॉल्ट अपने लिए हार्मफुल है फॉर द कैंसर पेशेंट। या करेक्ट। सेंधा नमक, उसको सेंधा नमक बोलते हैं सर, सेंधा नमक। हाँ, सेंधा, करेक्ट। वो बहुत एडवाइजेबल है। और कुकिंग में अगर आप कोकोनट ऑयल वापरते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का जो रिफाइंड ऑयल है वो अपने लिए हार्मफुल है। जो खाने में बनता है, खाने से बनता है, वो बहुत अच्छा है, केरल से भी अच्छा आता है। तो कोकोनट ऑयल भी अपने लिए कैंसर पेशेंट के लिए बहुत एडवाइजेबल है। और लास्ट वीडियो में बताया था कि खादर बोल जो बताते हैं श्री धान्य, तो इंस्टेड ऑफ राइस एंड गेहूं जो है, उसके बदले में हम लोग श्री धान्य भी यूज कर सकते हैं, जिसका हम लोग कंजी बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज का जो इंटेक है बहुत कम है, और वो अपने इसमें ब्लड में बहुत कम शुगर सिक्रेट करता है। तो कैंसर पेशेंट के लिए वो फूड भी बहुत एडवाइजेबल है। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू जॉर्ज जी।
आपने इतनी नॉलेजेबल बातें बताई हैं सबको, एंड इनफैक्ट आपने जो अभी बताया दैट शुगर के बारे में एक क्वेश्चन भी आया था कि किस डॉक्टर ने बोला है कि शुगर नहीं खानी है। तो शुगर हाईली प्रोसेस्ड होती है, वो हाईली रिफाइंड होती है, तो हम लोग उस रिफाइंड शुगर की बात कर रहे हैं। तो कैंसर क्या, शुगर तो किसी भी डिजीज में मतलब वो तो मतलब अवॉइड करनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी मीठा नहीं खाना है, जैसे कि आपने अभी बताया गुड़, तो जो जैगरी होती है, जो कोकोनट पाम जैगरी होती है, वो फिर भी यूज कर सकते हैं, बट जो शुगर होती है रिफाइंड शुगर, उससे दूर रहना चाहिए, कैंसर हो चाहे कोई कोई भी और प्रॉब्लम हो। राइट, सो राफिक जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। राफिक जी, मैंने नमस्ते, आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक्चुअली जानना यह है कि अभी विद इन 14 डेज पहले मेरा कजिन ब्रदर है, उसको कोरोना पॉजिटिव आया था, और उसके बाद सिटी स्कैन करवाया तो सिटी स्कैन में मेलिगेंसी डिटेक्ट हुआ। उसके बाद बायोप्सी करवाया, तो बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि भाई ये लंग्स का जो है कि कैंसर है। उसके बाद हम जो है कि यहाँ पर सूरत के अंदर जो हमारे लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एडवाइस लेके फिर डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट से हमने एडवाइस ली 2 दिन पहले। तो उन्होंने बताया कि भाई इनको डायरेक्टली डॉक्टर ने बता दिया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है। अब मुझे ये जानना है कि कभी उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और अभी ये डिटेक्ट हुआ और डायरेक्टली 4th स्टेज का ही कैंसर बता रहे हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर जहाँ तक हो सके मैं आंसर करता हूँ। मुझे जब डिटेक्ट हुआ था तो जो पहला टेस्ट किया तभी उन लोगों ने बताया कि द स्प्रेड ऑफ द सेल्स, द स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल्स इज अराउंड 62%, एंड दे सेड दैट इज मॉडरेट रिस्क, विच इज लाइक स्टेज 3 बोल सकते हैं। ओके। और इसका सिम्टम्स जो है, इट कैन बी 1 मंथ पहले या 2 महीना पहले से ये इसका सिम्टम्स स्टार्ट हो सकता है। ओके। ना वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि ये कितना स्प्रेड करता है और कितना जल्दी स्प्रेड करता है। फ्रॉम स्टेज 1 to 2 to 3 to 4 the spread can happen in few weeks also. It Okay. can happen rapidly also, क्योंकि अगर कुछ और ट्रिगर, जैसे आपने बोला कोविड पॉजिटिव, मतलब कोविड वायरस के वजह से ये ट्रिगर हुआ और जल्दी स्प्रेड हो गया। क्योंकि जब मेरा केमोथेरेपी चल रहा था मुझे भी कोविड हुआ था, ओके। और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स सबको हो गया था कोविड, लेकिन सबका एक साथ हुआ। तो मेरा डॉक्टर ने बोला कि अगर आप घर से बाहर आ सकते हो, हॉस्पिटल तक आ सकते हो, तो आप चेस्ट का स्कैन करते हैं, अगर नहीं है तो मेरे को एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया और बोला ये सुबह 4 टैबलेट ऑफ दैट एंटीबायोटिक विच इज वेरी हाई पोटेंसी, 200 mg एक टैबलेट है, वैसे दिन में 4, सुबह 4 और रात को 4, विच इज 800 प्लस 800, 1600 mg का मेडिसिन एक दिन में खाना चाहिए करके मेरा डॉक्टर ने बोला। दैट इज लाइक वेरी पावरफुल एंटीबायोटिक, बट दैट इज द ओनली टैबलेट अवेलेबल टू फाइट कोविड, और वो इंडिया में बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था। सो आपका रिलेटिव का केस में अगर स्टेज 4 है, सो मतलब 2-3 चीजें तो पॉसिबल है कि मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, और कितना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये स्टेज के बाद क्या होगा, ये स्टेज में ही क्या होगा, ये स्टेज से बाहर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सब चीजें आपको डॉक्टर से पूछ के जानना बहुत जरूरी है, ताकि नहीं, आपको एक्चुअली आपका वो टाइम तो मालूम पड़ेगा कि कितने नहीं, महीने वो में तो कितनी histology check कर सकते डॉक्टर ने हमें बता दिया। एक्चुअली हमारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली मेरा जो कजिन ब्रदर है उसकी एक किडनी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाइपरटेंशन है, हाई शुगर है। तो हैं। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि भाई ये जो है उनको कीमो भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक किडनी है उसका क्रिएटिनिन 3.2 है। तो अगर इसको कीमो देने जाएंगे तो कीमो उसका वजह से उसकी किडनी डैमेज हो सकती है या फेल भी हो सकती है। लेकिन ये सिम्टम्स इसके कैसे पता चलता है वो जानना है।
कि अगर किसी को कैंसर है, आपने बताया कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अगर इसके पता है, तो ये सिम्टम्स कैसे पता चलता है ये? ऑब्जर्व एनी abnormality इन द पर्सन. कोई भी abnormality मतलब इट कुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कोल्ड कॉफ, फीवर या सर दर्द या पेट का दर्द, या कोई भी तरह का अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड दर्द अगर होता है और अगर वो कंटिन्यू करता है 2-3 दिन से ज्यादा, अगर वो कंटिन्यू करता है, इट कैन इवन बी वेट लॉस, इट कैन बी विजन प्रॉब्लम, इट कैन बी एपेटाइट, खाते पीते कम है, राइट, इट कुड बी चेंज इन डाइट, इट कैन बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. बट हर चीजों का जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है क्या. या फिर आपको ये हेल्थ चेकअप करने से मालूम पड़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, आप अगर ब्लड टेस्ट लेते हैं तो ब्लड काउंट से मालूम पड़ सकता है कि हेमोग्लोबिन लेवल, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का नंबर कितना है. तो उसके थ्रू आपको फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि अगर ये नंबर्स में कुछ गड़बड़ है तो फिर इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर so that action can be taken on time. ओके, राइट. एंड इग्नोर नहीं करना चाहिए. हाँ, मैंने आज जी 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 प्रोटीन खा लिया, कल मैं ठीक हूँ, उसके बाद वापस कुछ और प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब चीजें इग्नोर नहीं करना चाहिए. बराबर. जी. एंड ओके सर. रफीक जी, मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी. एक्चुअली मैंने भी इसके बारे में काफी पढ़ा है. तो ये ऐसा होता है कि रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ठीक है. जो हमारे नॉर्मल रूटीन चेकअप्स होते हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इससे काफी लोग करते हैं ना कि नहीं, बाद में करा लेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो जो रेगुलर चेकअप होता है ना, वो हमेशा कराना चाहिए, क्योंकि कुछ सही पता बात है. नहीं चलता कब कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी पता चल जाए. और जैसे कि वेंकट जी ने भी बताया कि जो सिम्टम्स होते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स की लगातार पेन हो रहा है या लगातार सर दर्द हो रहा है, ऐसी चीजें अगर आपको लगातार होती हैं तो आपको जरूर एक बार चेक कराना चाहिए. जरूरी नहीं है कि कैंसर हो, पर एटलीस्ट हमें क्लियर हो जाएगा फिर. इसलिए कुछ भी हो सकता है तो पता चल जाएगा. जी बिल्कुल. इसीलिए इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है. या ये तो मुझे नॉलेज है. एक्चुअली मैं भी एक हॉस्पिटल का मेडिकल पर्सन ही हूँ. मैंने हॉस्पिटल में काफी वक्त तक काम भी किया है, इसके लिए उसका तो नॉलेज है. लेकिन ये जो सडनली ये आया और एकदम से लास्ट स्टेज का ही बता दिया डॉक्टर ने, तो वो थोड़ा मुझे कंफ्यूज हुआ. मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से इसका कोई सिम्टम्स पता नहीं चला, तो वो मुझे जानना था इसके लिए. जी. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. थैंक यू राफिक जी. ओके मैम. एंड हमारे जो क्वेश्चंस थे वो भी सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड दीपक जी भी कुछ बोलना चाहते थे. दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. Hello, Mr. Venkat. Voice is not coming, Mr. Venkat. Hello. Yeah, thanks for unmuting me. मैं अनम्यूट नहीं कर पाया इसके लिए. बराबर. तो या हाँ, बोलिए सर. सही बात है. डॉक्टर लोग हमारे पास में ये जो आपने बताया ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल बात है ये. हमारे पास एक ऐसा केस बहुत आ रहा है आजकल बॉम्बे में. अच्छा. अलग अलग कीमो ट्राई करेंगे. आज पहली बार फर्स्ट कीमो एक दिया, दूसरे टाइम में दूसरा कीमो देंगे, थर्ड टाइम में तीसरा देंगे, कि काम नहीं कर रहे करके. ये सब आपने जो बोला बराबर बोला हुआ है. और बाकी आपको कौन से डॉक्टर ने बताया कि वो शुगर नहीं लेना चाहिए? मैं जब लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, लीलावती मुंबई में. हाँ, मुंबई, करेक्ट. तो वहाँ पे जो ड्यूटी के जो स्टाफ होते हैं, उन्होंने बताया तो बराबर है. हाँ. और जब डाइटिशियन विजिट करते थे तो उन लोगों ने बोला कि बराबर. शुगर, हाँ, मिनिमम, बेयर मिनिमम, बट नथिंग लाइक, मतलब कोई स्वीट्स या चॉकलेट्स जिसमें शुगर बहुत रहता है,
या बराबर। ये फ्रूट जूसेस, पैक्ड फ्रूट जूसेस और ये कोक, पेप्सी वगैरह जिसमें शुगर की कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, वो सब अवॉइड कर दो। बराबर। तो वो टाइम पे आपको मैं कौन क्या सा करता था ALL कि का कौन सा एक बार ब्लड जब भी कैंसर? कोई मेरे को एडवाइस देते थे तो मैं जाके गूगल में सर्च कर लेता था पूरा। तो अगर कोई एक डॉक्टर ने मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताया, मैं गूगल में से पूरा पढ़ लेता था कि क्या है, कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पूरा रामायण क्या है, सब पढ़ लेता था। तो दैट हेल्प। कौन से डॉक्टर थे आपके वहां पर? ट्रीटमेंट कौन से? डॉक्टर MB अग्रवाल। MB अग्रवाल? हाँ। वो तो बॉम्बे हॉस्पिटल में है। वो तो हाँ। बॉम्बे हॉस्पिटल में है। लीलावती में तो दूसरे सब है डॉक्टर। हाँ तो वो लीलावती के एक्चुअली, डॉक्टर सब मेरे पहचान के हैं। हाँ डॉक्टर अग्रवाल जो है वो एक 5 हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, वो कंसल्टेंट है। हाँ, सो फोर्टिस है, लीलावती है, बॉम्बे है, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, और एक और भी है, ये अपना हिंदुजा, माहिम बराबर। हिंदुजा हॉस्पिटल। हाँ ये लीलावती के मैक्सिमम डॉक्टर मेरे को पहचानते हैं। ओके। मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है अभी भी। अच्छा, तो आपको कौन सा ब्लड कैंसर था? ALL था, AML था? AML। AML। वो तो रिकवरेबल है, वो क्योरेबल है इजीली। ओके, थैंक यू। बी थैंक यू। पॉजिटिव, स्टे Thank सेफ, दैट इज द मेन थिंग। मेरी वाइफ वही बोलती है, कैंसर कोई ये नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लाइफ का। कैंसर एक कॉमा है अपनी लाइफ में। करेक्ट। कल थैंक यू हम लोग तो, दीपक जी। मेरी वाइफ पेशेंट है तो भी वहां पर जाकर के लीलावती में एवरी वीक जाती है, कई लोग को मोटिवेट करती है। जी ओके। बिल्कुल। थैंक यू दीपक जी। ओके। थैंक यू दीपक। सो ये भी काफी नॉलेजेबल सेशन था, इतनी चीजों के बारे में पता चला, स्पेशली डाइट के बारे में। एंड एक लास्ट एक मैसेज किया था विनोद जी ने कि अनदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन विच इज आल्सो वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड फाइट कैंसर सो दैट रिलैप्सेस मतलब जो कैंसर रिकर हो जाता है, जो वापस आ जाता है, so that relapses don't happen even alongside taking chemotherapy and radiotherapy and post surgery. And main pointer is to be positive, stress free throughout the life and stay focused. तो ये विनोद जी आपने बहुत अच्छी बात बोली। आजकल तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का इतना चल रहा है, इतनी नॉलेज मिल रही है उसके बारे में कि वो कैसे हेल्प करेगा कि जो आपका मेन ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साइड बाय साइड आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, एंटी कैंसर डाइट लेंगे, ठीक है, जो बाकी की इतनी चीजें आ रही हैं तो वो कितना हेल्प करती हैं साइड इफेक्ट मैनेज करने में। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। एंड मैं फिर से वेंकट जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आप आए, आपने अपनी पूरी कैंसर जर्नी हमारे साथ शेयर करी, हमें इतनी सारी नॉलेजेबल चीजें बताई, इतनी पॉजिटिविटी दी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। यस डेफिनेटली। एंड मैं आशा भी करती हूँ कि हमारे अगले हीलिंग सर्कल में वापस से सब लोग ज्वाइन करेंगे ठीक 5 बजे, क्योंकि हीलिंग सर्कल से ही ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, हमें इतनी लोगों के बारे में चीजें पता चल, मतलब इतनी अलग अलग कैंसर पेशेंट्स हैं, अलग कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी जर्नी के बारे में पता चलता है और इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये काफी हेल्प करता है इतने लोगों को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच वेंक। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर।